میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے نا ایک سکون والی جگہ چاہیے، سائڈ پہ ہو کے کونے پہ بیٹھ کے نا، جہاں میں فوکس ہو کے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر آسک احمد سیشن۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے نا ایک سکون والی جگہ چاہیے، سائڈ پہ ہو کے کونے پہ بیٹھ کے نا، جہاں میں فوکس ہو کے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں۔ آئی تھنک مجھے وہ جگہ مل گئی ہے، یہ والی۔ کافی میرے آسک احمد سیشنز آپ کو اسی جگہ پہ مل رہے ہوں گے۔ سوال اگین میں ای میل کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو، فیس بک کے تھرو جو آپ مجھے میسیجز کرتے ہیں، جو لوگ میرے فالوورز ہیں ان کے میں سوال پڑھتا ہوں اور پھر میں آنسر دیتا ہوں۔ کئی دفعہ نا مجھے سوال آئے ہوتے، لوگ فالو بھی نہیں کر رہے ہوتے، سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ بس لائک کہ یار مطلب فالو کر لو یار ایٹ لیسٹ، اگر اتنے اہم سوالات ہیں آپ کو۔ لیکن اوبیسلی پریفرنس انہیں دی جائے گی جو فالو کر رہے ہوں گے، بیکاز میک مور سینس۔ امپورٹنٹ سوال، اور کافی لوگوں کے مائنڈ میں ہوگا، ایون میرے مائنڈ میں بھی تھا یہ سوال جب تک میں نے ان سے بات نہیں کی اور میرے تھوڑے خیالات کلیئر نہیں ہوئے۔ خیر، یہ سوال ہے جی انجم صاحب کی طرف سے۔ انجم بھائی کہہ رہے ہیں، So the question to you is why some people leave Germany after getting PR or German nationality؟ اتنا سمپل جتنا سوال لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں، اس کا آنسر اتنا سمپل نہیں ہے۔ بات ان کی ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہاں پر نا آتے ہیں، سیٹل ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، جابس کرتے ہیں، اس میں آپ کو لگ جاتا ہے 4 to 5 سے 7 ایئر تک کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ سوچ، جس طرح میں آیا تھا آ کے 2015 میں یہاں پر آیا، دین ماسٹرز کیا، 2-2.5 سال آپ کو ماسٹرز میں لگ گئے، پھر آپ 2-2.5 سال جاب کرتے ہو، PR وغیرہ پکڑتے ہو، پھر آپ کنٹینیو کرتے ہو۔ پہلے 7 سال کا ٹائم پیریڈ تھا میرے زمانے میں، اب نئے رولز کے مطابق وہ 5 سال کا ٹائم پیریڈ ہو رہا ہے نیشنلٹی کا۔ تو خیر، اتنا لمبا ٹائم سپین ایک بندہ اگر گزارتا ہے ایک ملک میں، کہ لینگویج سیکھی، سارے سسٹم سمجھا، کیونکہ اوبیسلی ایک ملک میں آپ آ رہے ہو، نیا سسٹم ہے، نئے لوگ ہیں، نیا انوائرمنٹ ہے، بٹ اگین وہ سب چیزیں جب آپ کر چکے ہوتے ہو، کرنے کے بعد نیشنلٹی اور PR ملنے کے بعد، موسٹ لوگ نیشنلٹی ملنے کے بعد چھوڑتے ہیں، تو بہت کم کیسز میں نے دیکھے ہیں جو PR ملنے کے بعد جرمنی لیو کرتے ہیں، بٹ زیادہ تر جو کیسز دیکھنے میں آتے ہیں، زیادہ تر میری جن لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ کچھ ریزنز ہیں، اور آئی تھنک ویلڈ ریزن ہے۔ جو لوگ موو آؤٹ کرتے ہیں ان کے اپنی سینیریو کے حساب سے ہوتی ہیں، تو ہر بندہ ایک تو اپنے لحاظ سے پہلے چیزوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میری ہو سکتا ہے کہ میں جس مائنڈ سیٹ کا ہوں، دوسرا بندہ اوبیسلی اس مائنڈ سیٹ سے نہیں سوچ رہا، وہ کہتا ہے جی اس کا ٹارگیٹ اس نے سیٹ کیا ہوتا ہے، آ کے میں نے نیشنلٹی لینی ہے، پھر میں نے جی اپنے ملک نکل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لانگ ٹرم یہیں پہ سیٹل ڈاؤن کرنا ہے میں نے۔ کچھ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ سیٹل ڈاؤن یہیں پہ کرنا ہے، لیکن بعد میں یہاں پہ رہ کے انوائرمنٹ دیکھ کے کچھ چیزیں انہیں نہیں پسند آتی، تو پھر وہ لیو کر جاتے ہیں۔ کچھ فیکٹر میں ڈسکس کروں گا کہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کو ایون آپ کی نیشنلٹی وغیرہ سب ہو گیا، آپ سیٹل ڈاؤن ہو گئے، اچھی جابس ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ دوسرے ملک، کسی اگلے ملک، ہو سکتا ہے انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جا رہے ہو، یا پھر واپس اپنے ملک انڈیا پاکستان جہاں سے بھی آئے ہو وہاں پہ جا رہے ہو۔ پہلا کیس ڈسکس کرتے ہیں کہ انڈیا پاکستان آپ کیوں جا رہے ہو؟ اگر آپ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہو، یہاں پہ جاب لگ گئی ہے، سب کچھ لگ گیا ہے، تو تب کیوں لوگ موو آؤٹ کرتے ہیں؟ ایسے کیسز ہیں، آئی پرسنلی نو سم آف دیم، جو ایسے کیسز ہیں کہ یہاں پہ نیشنلٹی انہوں نے کی، دین دے وینٹ بیک ٹو پاکستان، اور وہاں پر اب وہ اپنا سیٹ اپ چلا رہے ہیں۔ پہلی چیز جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا، وی ڈونٹ فیل لائک کہ بڑا نا ایک انوائرمنٹ اس ٹائپ کا ہے کہ تھوڑا اوپن تھا ان کے لیے، پریفر کر رہے تھے پاکستان کا ماحول، جہاں پر جی رمضان کا سین، عیدوں کا سین، ان اے مسلم کنٹری یو آر فری ٹو ڈو آل دوز تھنگ، جو یہاں پر آ کے آپ تھوڑی مس آؤٹ کرتے ہو۔ جس طرح جمعے کے میں نے ذکر کیا تھا، اکثر عربک میں ہو رہے ہوتے ہیں یا ترکش لینگویج میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو سم پیپل ڈو مس دیٹ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ٹھیک ہے، ہم آ گئے، ایفرٹ کر لی، سب کچھ کر لیا، سیٹل بھی ہو گئے، نیشنلٹی لے لی، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے رستے کھلے ہیں، کبھی بھی ہم واپس آ سکتے ہیں۔ اب پاکستان کیوں جاتے ہیں؟ وہ زیادہ تر جن سے میری بات ہوئی تھی، وہ کوئی مائنڈ سیٹ لے کے جاتے ہیں، اسپیشلی جب وہ یہاں پر رہ کے چیزیں اچیو کر لیتے ہیں، ان کا پلان ہوتا ہے کہ ہم بزنس اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں اور کچھ بزنس لایا جائے
जर्मनी से पाकिस्तान या फिर कुछ ऐसा जिन कंपनी में काम किया होता है उनके प्रोजेक्ट आउटसोर्स करके खोल लेते हैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस, और वहाँ से फिर प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, अपना सॉफ्टवेयर हाउसेस भी चलाते हैं। इवन जो लोग यहाँ पर नहीं आते वो भी काफ़ी अपना सॉफ्टवेयर हाउसेस चला रहे हैं वहाँ बैठे बैठे। तो आउटसोर्सिंग का, प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग का ये ट्रेंड काफ़ी इन है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में आपको पता है कि लेबर जो है, लेबर नहीं कहूँगा, वाइट कॉलर जॉब्स इवन उनकी पे इतनी हाई नहीं होती, और काम काफ़ी टैलेंटेड लोग वहाँ पर हैं और काम बड़ा अच्छा हो जाता है। तो कुछ लोगों का ये प्लान होता है कि जाके अपना बिज़नेस सेटअप करना है, और जो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं वहाँ जाके हमने अपने मुल्क में उन चीज़ों से वहाँ इन्वेस्ट करना है और फिर कुछ रेवेन्यू अपने मुल्क को भी जनरेट करके देना है। विच इज़ अ वेरी नाइस थिंकिंग कि आप यहाँ पर एक होल डिफरेंट कल्चर समझ के, होल डिफरेंट इन्वायरमेंट समझ के आपका ऑब्वियसली यहाँ पर रहते हो, लोगों से बात करते हो, जॉब्स करते हो, तो आपका माइंडसेट बहुत ओपन हो चुका होता है। तब आपके पास वैसे आइडियाज़ होते हैं जो वहाँ बैठे लोगों के पास नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें वो वाला एक्सपोजर नहीं मिला होता जो आप लेकर जाते हो वहाँ पर। उनका माइंडसेट भी गलत नहीं है ऑब्वियसली, और अच्छा माइंडसेट है। कभी कभार मेरा भी यही माइंडसेट होता है कि यार पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करें, और ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ चीज़ें हम देखेंगे कहाँ पे जाती हैं। बट येस, इस वजह से कुछ लोग ये माइंडसेट लेके जाते हैं, कुछ लोग इस माइंडसेट के साथ भी जाते हैं कि यार हम ना घरेलू जो फैमिली माहौल है वो मिस कर रहे हैं। फैमिली माहौल इन अ सेंस कि कुछ लोग अम्मा अब्बा से बड़े अटैच होते हैं। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बुला सकते। आई पर्सनली नो पीपल जो कि इस वजह से गए हैं कि माँ बाप अब उस एज में है कि उन्हें ज़रूरत है, और अब हमने उन माँ बाप ने हमें काफ़ी टाइम दिया, यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई, अब हम सेटल्ड हैं, हमने सेविंग्स भी कर ली है। ज़ाहिर बात है 5-6 साल यहाँ पर रहते हो तो कुछ सेविंग करके जाते हो, सेविंग के बगैर आप यूजुअली नहीं जाते हो, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हो। पर खैर उस सेविंग से अब जाके वहाँ पे कुछ करेंगे, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल गया है तो वहाँ पर हम कुछ ना कुछ अच्छा स्टार्ट कर लेंगे, या जॉब कर लेंगे, अपना स्टार्ट कर लेंगे, बट एटलीस्ट हम पेरेंट्स के साथ होंगे, ठीक है। तो ये बड़ा नोबल कॉज है, नथिंग अगेंस्ट इट। पेरेंट्स ऑब्वियसली ज़रूरत होती है बच्चों की, एक टाइम पे वो तन्हाई फील करते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी ऑब्वियसली इतनी बड़ी लंबे अरसे तक कुर्बानी देना। तो आई थिंक कुछ ये भी रीज़न्स होते हैं कि वापस आप मूव आउट करते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान भी जाते हैं, कुछ लोग इंडिया भी जाते हैं। हमारा कल्चर वैल्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू यहाँ के लोगों से, जहाँ पे कल्चर वैल्यूज़ अनफॉर्चुनेटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फॉर्चुनेटली जो भी है आई कांट से, बस इनका इतना इन्वायरमेंट वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि जी बच्चे साथ रहें, या फिर ज़्यादातर यही है कि बच्चे बस करते हैं 18 साल में निकल जाते हैं। ना पेरेंट्स इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे आएंगे, ना बच्चे इतना करते हैं कि जी पेरेंट्स अकेले हैं और ये है वो है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप है। ओल्ड एज हाउसेस में आप देख लें, ज़्यादातर वहाँ पे पेरेंट्स चले जा को भेज देते हैं अगर कुछ सीन है। अब सही है गलत है वो खैर एक डिफरेंट बहस है, बट दिस थिंग इज़ प्रीटी कॉमन, और बस है ये है, ठीक है ठीक है। मेरा एक बुज़ुर्ग से बात हो रही थी, यहाँ पे ओल्ड एज के थे, तो मैंने उनसे पूछा था आपको फ़ील नहीं होता कि आपके बच्चे हैं लेकिन आपसे साल में 2-3 दफ़ा मिल रहे हैं, तो एक फ़ील तो होता होगा कि क्या है। तो कहते हैं हाँ होता है, लेकिन हमने अपने अम्मा अब्बा के साथ यही था, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब हमें पता है कि वी आर रेडी फॉर दिस। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि जी बच्चे आके हमारे साथ रहेंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील ना, मतलब चल रहा है गुजारा। कुछ लोग क्यों जाते हैं जर्मनी छोड़कर इन अ डिफरेंट कंट्री रादर देन पाकिस्तान। कुछ लोग दुबई यूएई वगैरह भी जाते हैं, कुछ लोग कनाडा ऑस्ट्रेलिया भी शिफ्ट कर जाते हैं। दुबई यूएई जाने की मेरा ख्याल है मेन रीज़न होती है पैसा, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, जो आप कमाते हो ज़्यादातर आपकी जेब में जाता है। बट यहाँ पर 40-45% टैक्सेस मशहूर है जर्मनी के, यहाँ पे टैक्सेस काफ़ी हाई हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो आपका टारगेट है कि थोड़ी लेविश लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल आपने गुजारनी है और थोड़ा प्रोग्रेस करना है लाइफ में, नेशनलिटी आपको मिल गई, यूएई जाएं, जर्मन नेशनलिटी पे जाएं, आपको 5-6 गुना ज़्यादा पे मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तानी होते हो, ऐसा पाकिस्तानी नेशनल वहाँ पे काम करते हो। ये बड़ा एक है ट्रेंड ऑब्वियसली। जो यूएई में मेरे दोस्त हैं उन्हें भी पता है, जो वहाँ सुन रहे होंगे अगर यूएई में कोई मुझे, तो उन्हें भी वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि यार ये सीन होता है यूएई में ना, कि जी अगर पाकिस्तानी नेशनल हो तो तनख्वाहें ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती हैं आपकी। तो ये एक रीज़न हो सकता है, पैसे के लिए भी जाते हैं ऑब्वियसली। और एक और रीज़न कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में बड़े लोग मूव आउट करते हैं, वो रीज़न होता है मोस्टली फैमिली के बाद, क्योंकि ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो जर्मन इन्वायरमेंट में उस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पाते, इवन लिविंग हेयर फॉर 5 to 10 years।
उस तरह से लैंग्वेज में अबूर हासिल नहीं कर पाते। फिर ऑब्वियसली उनके बच्चे जब यहाँ पर पैदा होंगे ज़्यादा जर्मन स्कूल्स में जाएंगे, जर्मन बोलेंगे, घर में एक डिफरेंट लैंग्वेज एटमॉस्फेयर चल रहा है सारा, बाहर एक डिफरेंट बच्चा कर के आ रहा है, तो थोड़ा वो गैप ज़्यादा आ जाता है। डिस्कशन का गैप कह लें, कम्युनिकेशन गैप कह लें, बच्चों और माँ बाप में ना थोड़ा आ जाता है, क्योंकि बच्चों की मदर टंग या बच्चों की जो ज़ुबान होगी वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे जर्मन में बोलना एक लेवल एक स्टेज पे जाके। वो फिर यही होता है कि यार बच्चों को या तो आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि नहीं जी उर्दू बोलो, काफ़ी लोग सिखाते हैं यहाँ पे उर्दू, नो डाउट अच्छी भी होती है, बट ऑब्वियसली जो ज़ुबान आप ज़्यादा बोलोगे वही आप बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल होगे। बाहर बच्चे जर्मन में बोलेंगे, जर्मन सीखेंगे, जर्मन पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं। तो कुछ लोगों को होता है जी हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाएं ताकि हम भी अपनी बच्चों के एजुकेशन में भी कंट्रीब्यूट करें, उनके साथ थोड़ा चिल माहौल भी रखें, तो फिर वो अक्सर लोग मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। तो ये एक ट्रेंड है। आई थिंक दीज आर द डिफरेंट रीज़न दैट कुड प्ले पार्ट कि क्यों लोग यहाँ से मूव करते हैं आफ्टर गेटिंग द नेशनलिटी। ऑब्वियसली ये बड़ा कम रेशो है, ज़्यादातर लोग यहाँ से मूव नहीं करते। आई थिंक 80-20 का रेशियो होगा शायद, ज़्यादा आई कांट रियली टॉक अबाउट दिस क्योंकि मुझे पता नहीं है, कि मैंने रिसर्च की नहीं है इस पे, लेकिन जो ट्रेंड मैंने देखा है, जितने लोगों से मिला हूँ या जो मैंने बातें वगैरह सुनी है, ज़्यादातर लोग यहीं पे सेटल डाउन है, गिवन कि यहाँ पे अच्छी जॉब्स होती हैं, सब चीज़ें मिल रही हैं आपको, सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो ज़्यादातर लोग इतना बड़ा रिस्क भी क्या, इतना बड़ा उनकी कोई रीज़न्स नहीं होती कि वो मूव कर जाए इंटायरली। बट अगेन ऐसे केसेस भी हैं जो करते हैं। एक वाइब होती है ना कंट्री की, कुछ लोगों को यहाँ की वाइब पसंद आती है, कुछ को नहीं आती, तो हर बंदे के हिसाब से, उसके केस के हिसाब से ये वेरी करता रहता है। तो लेट मी नो कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। अगेन कोई सवाल है तो प्लीज़ जस्ट शूट आउट, आस्क ऑन माई इंस्टाग्राम, आस्क ऑन माई ईमेल्स, फेसबुक पे टाइप कर सकते हैं मैसेज। तब तक के लिए अगली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। होपफुली ये वीडियो थोड़ी सी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। See you in the next videos. Do like the video and subscribe to the channel अगर थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी लगी हैं, कुछ मेरी बातों से आपने एग्री किया है तो होपफुली अगले वीडियोस में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड, तेरी क्या साथ।